watching CVR News English. This is Savila Kuttapalli. Welcome to Inside News. Well, more into the details. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav addressed a query regarding UP Minister and SPSP National President Om Prakash Rajput's recent comments. Well, speaking indirectly, Yadav remarked, "You must have heard his verses or perhaps not, and please repeat the verses he mentioned and then I will respond to your question. If he has indeed said these verses a few days ago, only then I can comment, and otherwise it is not worth responding to such people," he said. Moving on to other story, during her visit to Nizamabad after a prolonged gap, BRS MLC K. Kavita expressed heartfelt emotions about reconnecting with the people of her constituency. She criticized the lack of development in the region, stating there is absolutely zero development or fulfillment of promises by the government. Kavita especially targeted the local BJP MP, accusing him of failing to address Telangana's issues in parliament or initiate any development in Nizamabad. She also emphasized that people are disillusioned with both Congress and BJP, asserting BRS is resurging in spirit and will return to power once again. I have come to Nizamabad after a very long time. After a long gap, meeting my own people is very emotional and very heart-touching, heartwarming. Today we've met in Nizamabad and there is absolutely zero development or zero fulfillment of promises by the Congress government. People are very upset about it. Although there is a BJP MP from here, this member of parliament has never asked anything about Telangana in the parliament, nor has brought any new development to Telangana or Nizamabad in particular. So people are already fed up with both Congress and BJP. BRS once again is resurging in its, in its spirit, and we will. Nizamabad, BRS comes back to power once again. Today I have come to Nizamabad after a very long time. After a long gap, meeting my own people is very emotional and very heart-touching, heartwarming. Today we've met in Nizamabad and there is absolutely zero development or zero fulfillment of promises by the Congress government. People are very upset about it. Although there is a BJP MP from here, this member of parliament has never asked anything about Telangana in the parliament, nor has brought any new development to Telangana or Nizamabad in particular. So people are already fed up with both Congress and BJP. BRS once again is resurging in its, in its spirit, and we will. Meanwhile, Uttar Pradesh Deputy CM Rajesh Pathak responded sharply to Samajwadi Party President Akhilesh Yadav's statement, emphasizing that Uttar Pradesh infrastructure is being developed at a world-class level and the state is rapidly advancing in terms of national progress. Well, Pathak also welcomed the global follower Sanatana Dharma for the Mahakumbh and invited Akhilesh Yadav to join, suggesting he could earn merit and wash away his sins. He also reminded Yadav of his party's past rule in the state, asserting that the people of Uttar Pradesh would never forgive the Samajwadi Party, and Pathak also took a dig at Yadav's frequent criticism of the electronic voting machines, questioning how the opposition considers EVMs trustworthy only when they win and faulty when they lose. जर्मनी से आए मेंबर पार्लियामेंट राहुल कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज उत्तर प्रदेश राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनकर के तैयार हो रहा है। केवल आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, हमारे आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो गए हैं और आधा दर्जन पाइपलाइन में शीघ्र ही वो भी बनकर के तैयार होने वाले हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासन काल था, आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी। हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे।
उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप समय समय पर सवाल उठाते ईवीएम पर। आप सोचो, जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी है, हारते हो तो ईवीएम बुरी है। ये दो रंगी चाल उत्तर प्रदेश जनता कभी आपकी स्वीकार नहीं करेगी। जर्मनी से आए मेंबर पार्लियामेंट राहुल कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के Meanwhile, Congress leader Pawan Khera criticized the BJP over the issue of allocating space for a memorial for former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, pointing out that it was the Congress leadership, including Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, who had offered land at Shakti Sthal for his memorial. Khera questioned why the focus was on political figures instead of the family of the late PM during the funeral arrangements, referring to the lack of sensitivity in the handling of the situation. He also accused BJP leaders JP Nadda and Hardeep Singh Puri of indulging in cheap politics, claiming that the BJP only announced plans for the memorial after being pressurized by Congress. बनाओ ना, बना हुआ है। हाँ, आप ठीक है सर, शुरू करें। ठीक ठीक। सर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल अंतिम संस्कार हुआ। पार्थिव शरीर उनका जो है पत्नी के हवाले कर दिया गया और आज उनका अस्थियों का भी विसर्जन हो गया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने सवाल खड़े करे, आप लोगों ने सवाल खड़े करे कि जिस तरह से बदइंतजामी का आपने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि उनका कहना है, जेपी नड्डा का कहना है कि चीप पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, एक सस्ती राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और आज और भी मंत्री सामने आए, हरदीप पुरी और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो सामने आए। हरदीप पुरी ने तो ये तक कहा कि आज जब अस्थि विसर्जन हो रहा था तब कोई कांग्रेस का नेता नहीं। देखिए, एक बात सुनिए, निगमबोध घाट पर कब आपने सुना कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि हुई है? हम कम बोले क्योंकि ऐसा मौका नहीं था, इंतजार हम भी कर रहे थे कि देखिए सवाल तो पूछेंगे हम। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। आपके पास राहुल जी और प्रियंका जी ने यहां तक कहा कि आप शक्ति स्थल से कोई हिस्सा लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन उनको ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। न आपकी एजेंसी अंदर अलाउड थी, सिर्फ दूरदर्शन अलाउड था अंदर, और दूरदर्शन कवरेज प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे दे रहा था। अरे साहब, जिनकी अंत्येष्टि है उनके परिवार पर आपका फोकस नहीं है। हर जगह क्या प्रधानमंत्री को ही आगे लाना है? किसी और की अंत्येष्टि हो, कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पूरे देश के एक सपूत की अंत्येष्टि हो रही है, प्रधानमंत्री पर फोकस किए जा रहा है दूरदर्शन। और मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां, उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी पत्नी है, उन बेटियों के परिवार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने संघर्ष करके, जद्दोजहद करके और कुर्सियां लगवाई फ्रंट रो में। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, दोहित्रे थे, जिनको भाग लेना था अंत्येष्टि की पूरी क्रिया में, उनको ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बदइंतजामी। अमित शाह गृह मंत्री का जब मोटर कारों का कॉन्वॉय आया तो पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन को डिसरप्ट कर दिया। इनके अपने मनमोहन सिंह जी के परिवार के सदस्यों की गाड़ियां अफरा तफरी में इधर उधर हो गई, फिर उनको ढूंढ के अंदर लाना पड़ा। डिप्लोमैट्स, राजदूत बहुत आए, उनको आपने कहीं पीछे बैठा दिया। फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। ये कोई पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह का सम्मान देंगे आप, जिन्होंने 10 भैया फ्रेम आ गया, फाइनल आपका, फाइनल फ्रेम है आपका। क्यों?
Meanwhile, Haryana Minister Anil Vij condemned Rahul Gandhi and the Congress party for politicizing the issue of a memorial for former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, accusing them of showing no shame in exploiting the situation for political gains. Vij clarified that the location for Singh's memorial had not been yet decided by the government, which is still in the progress of finalizing the site. He urged the Congress not to use this sensitive matter as a platform for politics, emphasizing that such discussions should not be held over the memory of a deceased leader. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संस्कार निगम बोर्ड में कर उनका अपमान किया। राहुल गांधी, इनकी पार्टी, इनकी सहयोगी पार्टियों को शर्म भी तो नहीं आती है कि ये मृत पड़े पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। राजनीति और समय पर भी की जा सकती है। अभी उनका जहां स्मारक बनना है, जगह तय नहीं हुई थी। सरकार ने बता दिया कि हम जगह तय कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो जगह तय नहीं की है तो कहीं तो उनका संस्कार होना था। तो उनका जो संस्कार है निगमबोध घाट पर हुआ है। इसी बहाने कई महानुभावों के कदम भी निगमबोध घाट तक चले गए, जो शायद कभी ना जाते हों, क्योंकि वो आम जनता के लिए शमशान बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक किसान नेता दल्लेवाल को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार इसमें कोई राजनीति नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का संस्कार निगम बोर्ड में कर उनका अपमान किया। राहुल गांधी, इनकी पार्टी, इनकी सहयोगी पार्टियों को Rajasthan Deputy Chief Minister Diya Kumari revealed plans to develop new tourist destinations and enhance the branding, the festivals of existing ones, aiming to make Rajasthan the top destination for global tourists visiting India. She also expressed her excitement about the IFA Awards, which will be held in Jaipur for the second time in India, calling it a happy occasion for the state. Kumari's statements reflect the government's commitment to boosting Rajasthan's tourism sector and showcasing it on the global stage. कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, राजस्थान देखने आ रहे हैं। बहुत सारे हम लोग नए डेस्टिनेशंस भी डेवलप करने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में भी और हम लोग ब्रांडिंग अच्छी करेंगे, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी बनाना चाह रहे हैं। ये सब कुछ अब आप देखेंगे नेक्स्ट 1 साल में 2 साल में। राजस्थान को एक बहुत ही बेस्ट टूरिस्ट स्टेट बनाना है पूरे देश में और ग्लोबली भी राजस्थान हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर भारत आएँ तो बिल्कुल राजस्थान तो उनके लिए सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए कि हमें तो राजस्थान आना ही है। आईफा से कई इवेंट्स होने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। इस बार आईफा अवार्ड्स राजस्थान में जयपुर में होने वाले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और ये इससे पहले मुंबई में हुआ था और उसके बाद ये दूसरी बार भारत में होने जा रहा है और जयपुर में होने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, राजस्थान देखने आ रहे हैं। बहुत सारे हम लोग नए डेस्टिनेशंस भी डेवलप करने वाले हैं और जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में भी और हम लोग ब्रांडिंग अच्छी करेंगे, वहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी बनाना चाह रहे हैं। ये सब कुछ अब आप देखेंगे नेक्स्ट 1 साल में 2 साल में। राजस्थान को एक बहुत ही बेस्ट टूरिस्ट स्टेट बनाना है पूरे देश में और ग्लोबली भी राजस्थान हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर भारत आएँ तो बिल्कुल राजस्थान तो उनके लिए सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए कि हमें तो राजस्थान आना ही है। आईफा से कई इवेंट्स होने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। इस बार आईफा अवार्ड Congress leader Tariq Anwar criticized the BJP for failing to allot memorial space for former PM Dr. Manmohan Singh, calling it disrespectful to his decade-long contributions to India's economy. He also accused the BJP of vote manipulation in states like Maharashtra to create an illusion of public support.
Addressing CR Kesavan's remarks, he clarified that Narasimha Rao's last rites were held in Andhra Pradesh due to his strong connection with the state, while Pranab Mukherjee's stature as president transcended party affiliations. Palanmar also expressed hope for harmony in Bihar under Arif Mohammad Khan's new role. देखिए, किसी हद तक उनका आरोप सही है, क्योंकि हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा, कई दूसरे राज्यों में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि उनके जो समर्थित वोट है वो बढ़ाया जाए और जो उनके विरोधी हैं उनको कम किया जाए। और ये बहुत ही होशियारी के साथ ये कॉन्स्पिरेसी होती है और पता भी नहीं चलता, लोगों को मालूम भी नहीं होता। जनता समझती है कि वोट से जीत कर आए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मैनिपुलेशन काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, इसके अलावा जो डॉक्टर मनमोहन कोई और जगह भी दे सकते थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, एक तरीके से कैप्चर किया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाया गया, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात तो आम तौर पर चर्चा में है कि जो उनका ड्यू था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और जिस प्रकार से उन्होंने देश की सेवा की, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया, दुनिया में भारत की आर्थिक हालत क्या है ये बताने की कोशिश की और भारत का सम्मान बढ़ाया। 10 साल तक जो आदमी देश का प्रधानमंत्री हो उसको 2 गज जमीन देने को ये सरकार तैयार नहीं है, तो बहुत दुख की बात है। और मैं समझता हूँ कि आम तौर पर इसकी भर्त्सना हो रही है, निंदा हो रही है कि भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भी अपनी राजनीतिक गोटी सेकने का काम किया है। सर, आरिफ मोहम्मद खान, क्योंकि अब बिहार के मैं केरल छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा टच में रहूँगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को, एक अच्छा सफ़र रहा मेरा केरल में। आप कैसे उनके इस संदेश को देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसे तो आरिफ भाई हमारे पुराने मित्र हैं और लेकिन जो उनका केरला में गवर्नर का जो पीरियड रहा, जो समय रहा, वो विवादित रहा और राज्य सरकार से उनके काफ़ी टकराव जैसी परिस्थिति बनी रही। तो ये किसी भी राज्यपाल के लिए ये सही नहीं है और हमको उम्मीद है कि वो बिहार जब आ रहे हैं तो बिहार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की उम्मीद कम है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो एक तरह से जिस पार्टी से उनका संबंध है उसी पार्टी की वहाँ सरकार है। सर, शर्मिष्ठा मुखर्जी डब्ल्यूसी नहीं बुलाई गई, कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ और उन्होंने CR केसवन का भी ट्वीट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ट्वीट किया कि नरसिम्हा राव जी को तो कांग्रेस के अंदर लाया ही नहीं गया था, आने की इजाज़त ही नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, नरसिम्हा राव जी का परिवार और उनके चाहने वाले आंध्र प्रदेश उनको ले जाना चाहते थे और वही उनका आखिरी रिचुअल हो, इस बात की लोगों की इच्छा थी, क्योंकि नरसिम्हा राव जी बहुत आंध्र प्रदेश से बहुत हद तक जुड़े थे। उनका सिर्फ वो गृह राज नहीं था, बल्कि वो एक तरह से वहाँ से भावनात्मक उनका लगाव था और वहाँ के लोगों में उनकी बहुत श्रद्धा थी। तो इसलिए लोग चाहते थे कि उनका आखिरी क्रियाक्रम वहीं हो और इसीलिए उनको वहाँ ले जाया गया था। और जहाँ तक प्रणब मुखर्जी जी का सवाल है, प्रणब मुखर्जी जी थे कांग्रेस के नेता ज़रूर थे, लेकिन वो बाद में राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के हैसियत से जो भी हम लोग कर सकते थे उनको हम लोगों ने किया था। वो सिर्फ कांग्रेस के नेता तो नहीं थे, रह गए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी जो हैसियत या उनकी जो शख्सियत वो कांग्रेस नेता की नहीं थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, किसी हद तक उनका आरोप सही है,
क्योंकि हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा, कई दूसरे राज्यों में भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि उनके जो समर्थित वोट है वो बढ़ाया जाए और जो उनके विरोधी है उनको कम किया जाए। और ये बहुत ही होशियारी के साथ ये कॉन्स्पिरेसी होती है और पता नहीं चलता, लोगों को मालूम भी नहीं होता। जनता समझती है कि वोट से जीत कर आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये मैनिपुलेशन काफी अरसे से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। Jansurut Chief Prashant Kishore clarified that his visit to Gandhi Maidan in Patna was not a protest but a meeting with students. He expressed concern over the Bihar government's decision to block students from gathering in a public place, stating that if students have no other place to assemble, they should be allowed to gather in public areas. Kishore also criticized the government for making it a matter of prestige, suggesting that such actions harm their own reputation. He also emphasized that Bihar, being the birthplace of democracy, should allow students the right to express their views, warning that the government's actions risk turning the state into a Lati Tantra. नहीं, हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं? वहाँ छात्र बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहां बात कर रहे हैं। वहां पर कोई धरना, प्रदर्शन ऐसी बात तो है नहीं। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1000, 2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे? इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं। नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है? प्रशांत किशोर भी बिहार के एक सामान्य नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं भी जाकर बैठूं तो मैं भी वहां जाकर बैठूंगा। जहां पर छात्र पहले गर्दनी बाग वाले एरिया में बैठे हुए थे, वहां पर जगह नहीं थी और कई नाले वगैरह खुले हुए हैं। कल भी लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जब लोग 500 से ज्यादा लोग होते हैं तो कई लोगों को चोट लगने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। दोनों ओर से गेट पुलिस बंद कर देती है। तो बैठकर इतना ही तय किया गया कि किसी एक सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात की जाए। इतनी ही सी बात है कि वहां पर बैठकर सबने तय किया भाई सबसे अच्छी जगह क्या होगी, जहां जनता को परेशानी न हो, जीवन में किसी के व्यवधान न पड़े। तो लोगों ने कहा भाई गांधी मैदान में 2-3 हजार लोग तो आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर एक कोने में बैठकर हम लोग भी बात कर लेंगे। प्रशांत जी, आपके आने के बाद जहां छात्रों का मनोबल बढ़ा है, वहीं सरकार की, प्रशासन की बेचैनी भी बढ़ी, इसे आप इनकार करेंगे? भाई सरकार की बेचैनी बढ़ी है नहीं बढ़ी, ये तो सरकार का मामला है। बच्चों का अगर मनोबल बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। उनको जरूर ये इतना शायद अगर ढाढ़स है कि मेरे रहते हुए उन पर कोई बहुत ज्यादती नहीं होगी, तो मेरा इतना कर्तव्य बनता है, इतना तो हमें करना ही चाहिए बिहार के छात्रों के लिए। थोड़ा लेट से सब आप जागे, लेकिन नहीं, लेट से जागने की बात नहीं है। मेरा इन चीजों में ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाएं। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। इन बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए 3-4 दिन पहले, जब मैंने ये देखा कि 200-250 बच्चे अगर शांतिपूर्ण तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं या अपनी मांग रख रहे हैं, वो मांग सही है, गलत है, ये सरकार उनके साथ बैठकर निर्णय कर सकती है। लेकिन बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वो निहायत तौर पर गलत बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर बिहार में 500 बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा, तो इसको तो हम लोग लाठी तंत्र में बना रहे हैं। लाठी तंत्र तो नहीं बनाया जा सकता है इसको, इसलिए उनके साथ खड़े हैं।
दिख तो निकले। किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं, वहां छात्र बैठे हुए हैं तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहां बात कर रहे हैं। वहां पर कोई धरना, प्रदर्शन ऐसी बात तो है नहीं। सरकार नाहक ही इस मुद्दे को अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है और कहीं न कहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर 1000, 2000 बच्चे, 500 बच्चे बैठकर बात करना चाहते हैं तो बच्चों के पास कोई सरकारी बंगले तो है नहीं, वो कहाँ बैठेंगे। इसलिए वो गांधी मैदान एक सार्वजनिक जगह है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं। नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है। प्रशांत किशोर भी बिहार के एक सामान्य नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं भी जाकर बैठूं तो मैं भी वहां जाकर बैठूंगा। जहां पर छात्र पहले गर्दनी बाग वाले एरिया में बैठे हुए थे वहां पर जगह नहीं थी और कई नाले वगैरह खुले हुए हैं। कल भी लोगों ने मुझे बताया कि भैया यहाँ पर जब लोग 500 से ज्यादा लोग होते हैं तो कई लोगों को चोट लगने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। दोनों ओर से गेट पुलिस बंद कर देती है। तो बैठकर इतना ही तय किया गया कि किसी एक सार्वजनिक जगह पर बैठकर बात की जाए। इतनी ही सी बात है कि वहां पर बैठकर सबने तय किया भाई सबसे अच्छी जगह क्या होगी, जहां जनता को परेशानी न हो, जीवन में किसी के व्यवधान न पड़े। तो लोगों ने कहा भाई गांधी मैदान में 2-3 हजार लोग तो आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर एक कोने में बैठकर हम लोग भी बात कर लेंगे। प्रशांत जी, आपके आने के बाद जहां छात्रों का मनोबल बढ़ा है वहीं सरकार की, प्रशासन की बेचैनी भी बढ़ी, इससे आप इनकार करेंगे? भाई सरकार की बेचैनी बढ़ी है नहीं बढ़ी ये तो सरकार का मामला है। बच्चों का अगर मनोबल बढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, उनको जरूर ये इतना शायद अगर ढाढ़स है कि मेरे रहते हुए उन पर कोई बहुत ज्यादती नहीं होगी, तो मेरा इतना कर्तव्य बनता है, इतना तो हमें करना ही चाहिए बिहार के छात्रों के लिए। थोड़ा लेट से सब आप जागे, लेकिन नहीं, लेट से जागने की बात नहीं है। मेरा इन चीजों में ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाएं। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। इन बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गए 3-4 दिन पहले, जब मैंने ये देखा कि 200-250 बच्चे अगर शांतिपूर्ण तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। Well, those are the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Have a good day.